A brief introduction about myself. I am Shashank. I work at Google. I've been here for close to 8 years now, and I also create content which is focused on career and professional development. आज की जो मेरी talk है, it's focused on 3 life lessons that I have for all of you. Maybe I am in my mid-30s, so ये life lessons आपको different stages पे motivate और inspire करते रहेंगे. And the intent is to let you know कि if things are not going in your direction, it's okay. So let's start with first lesson that I have for all of you. At age of 17 or 18 is the time when we go to college. And best part about my acad life throughout has been कि मैं कभी बहुत bright student नहीं रहा ना, neither have I been a student जो हमेशा bottom of the pyramid में हो. And best part about being in this range is कि आपको पता है कि बहुत अच्छा भी कर लूंगा तो 78-79% पे गिरूंगा, बहुत बुरा भी कर लूंगा तो 71 पे आ जाऊंगा. And this gives you predictability. And predictability is something that I was searching throughout in my academic life. I did my engineering in electronics and communication, and I did it from a tier 2 college which was based out of Delhi NCR. और जब आप tier 2 college में रहते हो, there is one thing that you struggle a lot is getting placements because companies few आती हैं, students ज्यादा होते हैं और आपको अपने survival के लिए fight मारनी होती है. And same thing started happening with me as well. पर मुझे चाहिए थी लाइफ में predictability, so I started figuring out which can be the smartest way out जिससे मुझे प्लेसमेंट भी मिल जाए, मुझे फाइनल्स में भी ना बैठना पड़े. So I started reaching out to people and figured out कि there is a elder brother of one of my very close friends who is working in a semiconductor company. And he told me कि ये couple of checklist हैं यार, इसको तुम्हें follow कर लो, ये चीजें अपने resume में build कर लो, and chances are high कि we will take you for internship in 3rd year and you will convert. This gave me much needed predictability कि चलो sorted है, after 3rd year of my engineering I'll get a placement. But as life would have it, 3rd year में that particular person left that organization and went for his higher studies. Now again I was left with 2 choices. पहला कि बैठ के क्रिप करते रहो, मेरे साथ ये क्या हो गया. सेकंड ये कि फाइनल प्लेसमेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो. एंड एज आई टोल्ड यू कि आई कम फ्रॉम अ टियर 2 इंजीनियरिंग कॉलेज. तो टियर 2 इंजीनियरिंग कॉलेज में बेसिकली मास रिक्रूटर्स आते हैं दैट टेक बंच ऑफ द स्टूडेंट्स विद देम, एंड दिस कैन रेंज फ्रॉम 200 to 300 स्टूडेंट व्हेन अ बैच साइज इज से ऑफ 1000. Same happened with me as well. Infosys came on campus. I was selected for a software engineer role. फिर लाइफ में थोड़ी लगा कि अब प्रेडिक्टेबिलिटी आने लगी है क्योंकि मेरे पास जॉब आ गई है. जो मेरा सेट ऑफ कोर फ्रेंड सर्किल था वो भी वहां प्लेस हो गया. सो विल गो टू अ न्यू सिटी टुगेदर, एक्सप्लोर की वर्किंग प्रोफेशनल की एक लाइफ क्या होती है और चीजें स्मूथ हो जाएंगी. बट वी गॉट टू नो इन जुलाई 2012, जून 2012 इज द टाइम व्हेन आई ग्रेजुएटेड, कि इन्फोसिस ने ज्वाइनिंग 1 साल से डिले कर दी है. नाउ दे विल गिव अस अ ज्वाइनिंग डेट ऑफ अगस्त 2013. नाउ अगेन देयर आर 2 थिंग्स हियर. फर्स्ट इज आई कैन आइदर चूज कि ठीक है मैं बैठता हूँ 1 साल वेट करता हूँ क्योंकि जॉब तो है ही. उन्होंने कहा था कि बी रेस्ट एश्योर्ड वी विल गिव यू ज्वाइनिंग बट इट विल हैपन आफ्टर अ ईयर. या सेकंड आई स्टार्ट फिगरिंग आउट व्हाट कैन बी द बेस्ट वे टू लुक फॉर अ न्यू जॉब. नाउ 2012 इज द टाइम जब लिंक्डइन उतना बड़ा था नहीं, मेरा नेटवर्क उतना स्ट्रॉन्ग था नहीं बिकॉज आई कम फ्रॉम फैमिली ऑफ सिविल सर्वेंट्स. तो मेरे यहाँ किसी ने कभी प्राइवेट जॉब कर नहीं रखी थी. तो मेरे यहाँ जो भी घर में लोग थे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, तो उन्हें पता नहीं था कि यार ये प्राइवेट कंपनीज में रेफरल्स कैसे वर्क करते हैं. At that time, I started exploring कि कौन से प्लेटफॉर्म्स या मीडियम्स हो सकते हैं जहां से मुझे या रेफरल मिल जाए या किसी कंपनी में कनेक्शन मिल जाए. Simultaneously, I was preparing for CAT as well because that was my backup option कि अगर ज्वाइनिंग नहीं आती तो एटलीस्ट CAT दे लो, MBA के लिए चले जाओ, पर 1 साल पूरा वेस्ट नहीं करना है. एक पागल गाय करके प्लेटफॉर्म हुआ करता था. आई डोंट नो इफ इट एग्जिस्ट इवन टू दिस डेट और नॉट. वहां पे होता क्या था कि लोग आके CAT के क्वेश्चंस डिस्कस करते थे. I started looking at chat rooms of IIM Ahmedabad, Bangalore, Accelerite, और 3-3 साल 4-4 साल पुराने चैट रूम्स में जाता था क्योंकि मेरे को पता था कि यहाँ पे जिन्होंने अभी चैट कर रखी होगी वो अब तक ग्रेजुएट कर चुके होंगे. अगर वो ग्रेजुएट कर चुके होंगे तो किसी ना किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे. I started reaching out to those folks, started sending them cold messages and asking for referral कि sir can you help me out because I want to land a job and my joining has been delayed. Few were gracious enough to offer me a referral and through that I got 2 calls. One was from IBM, second one was from Accenture. Accenture I finally converted and that is where my first particular job जो होती है वो मेरी वहां से होनी शुरू हुई. अब Accenture में भी life was going good क्योंकि आपके पास एक अच्छी जॉब है, you are tagged to a great project and that project has option of sending you to US, जो किसी भी IT employee का ड्रीम होता है कि मेरी ऑन साइट जाने की अपॉर्चुनिटी मेरे को मिल जाए. सारी चीजें स्मूथ चल रही थी, लेकिन एक चीज वहां पे मेरी समझ में आई कि आप उतने ही अच्छे हो सकते हो जितना आपका फ्रेंड सर्किल आपके अराउंड हो. इवन दो आई वाज सीकिंग प्रेडिक्टेबिलिटी, नॉर्मल लाइफ चल रही थी, मेरे फ्रेंड्स मुझसे ज्यादा एम्बिशियस थे. Somebody has just cracked UPSC, somebody had become an Indian engineering services officer, somebody has just cracked CAT like anything, went into IIM Ahmedabad. उन्हें देख के मेरे को लगा कि यार ये क्या कर रहे हैं लाइफ में और मैं क्या कर रहा हूँ. So I also need to buckle up.
I also need to level up my game. And that's the time when I started seriously preparing for my MBA examination. MBA एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट की. अब आप कहीं पे भी टाइम और एनर्जी फोकस करोगे तो कहीं से कट डाउन करोगे. अनफॉर्चुनेटली मेरे केस में मुझे अपनी जॉब पे वो कट डाउन करना पड़ा. एंड व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दैट, इट स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग एज वेल, राइट? So I lost the project that I was working on and I was on bench. And when you go to a bench in any IT company, it is expected कि आप अपना next possible project as soon as early ले लो, because then the chances are कि अगर आपने नहीं लिया तो next round of layoff में या अगर उनको eliminate करना हो workforce, वो आपको कर देंगे. तो रिस्क दोनों साइड था. यहाँ पे रिस्क था जॉब जाने का और दूसरा ये भी नहीं पता था कि कैट में मेरा स्कोर क्या आएगा. मैंने कैट का एग्जाम दिया, इट वेंट रियली वेल एंड आई वाज वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स. व्हाइल आई वाज वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, I got some projects, but they were outside Bangalore. Bangalore was the place where I started my professional journey. अब बैंगलोर से दूसरी सिटी मूव करने का मतलब कि 2 महीने का पूरा हैसल, और ये हैसल अगर आप लेते हो तो आपके इंटरव्यूज ऊपर नीचे हो जाएंगे. एट द सेम टाइम आपकी प्रिपरेशन विल गो फॉर अ टॉस. सो आई डिसाइडेड कि इट्स हाई टाइम, मेरा पेपर अच्छा गया है, मैं क्यों ना अपने ऊपर बैठ लूं और मैं पेपर ही डाल दूं. मैंने रिजाइन कर दिया. एंड जस्ट स्नीक पीक की ये रेजिग्नेशन रिलेटेड जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, इट ऑलवेज स्ट्रेचेस 4-5 मिलियन. आई डोंट नो कितने लोग रिजाइन करते रहते हैं, पर लगता है काफी लोग करते हैं. तो जब मैंने वहां पे रिजाइन किया, रिजाइन करने के बाद मेरे पास कोई और बैकअप ऑप्शन था नहीं. फॉर्चुनेटली the winds were in my favor and I finally converted my CAT examination. I got a decent percentile of 97 and I went to IMT Ghaziabad. So first lesson from this story for you out here is you should embrace ambiguity. Life में situations होंगी where you feel कि यार मेरे हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं, and it's okay अगर आपके हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं, because then you will put your best foot forward, and once you put your best foot forward, you also don't know कि आप किस तरह के wonders कर सकते हो. Now let's move to second life lesson. IMT गाजियाबाद क्रैक कर लिया, एक अच्छा MBA कॉलेज वहां पे पहुंचा. Then again I started seeking कि यार अब और predictability होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में जनरली माइंडसेट is कि if you do MBA from a good college, the chances are high that the college will get you placed. मैंने अपनी सारी किस्मत अपने कॉलेज के हाथ में छोड़ दी कि ठीक है यार मैं चुपचाप पढ़ता रहता हूँ, यहाँ पे कंपनीज आएंगी और मेरी प्लेसमेंट हो जाएगी. And I got a reality check within 2 months. July is the time when I joined. September is the time when summer internship started kicking in. Summer internship में day 1, 2, 3, 4 से लेके 14 हो गए. मेरे साथ वाले प्लेस होते जा रहे थे. I was not getting even a single interview call. Finally, I was able to get a call in not so decent company, and from there I did my internship. Then I started deep diving कि यार reason क्या है कि सबकी कॉल आ जाती है, मेरी नहीं आती. मैंने बैच साइज को एनालाइज किया एंड फिगर्ड आउट कि यार 550 का बैच है, 400 जनरल इंजीनियर मेल हैं जो सेम कंपनी से आ रहे हैं जहां से मैं आ रहा हूँ. So up now when I look at hindsight as a recruiter, because I also take a lot of interviews for Google, candidates are generally rows in an Excel sheet. So when you are a row in an Excel sheet, you have to stand out in that Excel sheet. Otherwise chances are low कि आपकी shortlist आएगी या किसी अच्छी कंपनी में आपकी कॉल आएगी. अब इस सिचुएशन को कैसे टैकल करें? एक ही तरीका था कि यार इस पूरे बैच साइज में खुद को डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएट आप कैसे कर सकते हो? क्योंकि आपका पास्ट आप बदल नहीं सकते, फ्यूचर आपका आपको पता नहीं, प्रेजेंट में जो करना है करना है. मैंने फिगर आउट किया कि बेस्ट तरीका ये है, मैं आईटी बैकग्राउंड से आया हूं, क्यों ना मैं वो सारी चीजें करूं जो एक नॉन आईटी वाले को आती है. दैट इज स्टार्ट बिल्डिंग स्किल्स ऑन सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट, लर्न सम बिट ऑफ फाइनेंस, लर्न अबाउट मार्केटिंग, and I started taking up live projects and sessions with all the top companies. I started cold calling them, reaching out to them and asking them for projects. At the same time, I started investing my time and energy in taking part in competitions. क्योंकि आप किसी भी कंपटीशन में पार्ट लेते हो जो कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइज करती है, इट गिव्स यू 2 लर्निंग्स. फर्स्ट आप एक पूरी इंडस्ट्री जान लेते हो, और सेकंड क्योंकि आप पार्टिसिपेट करते हो, यू कम इन आई ऑफ द रिक्रूटर्स हु आर वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज दे समहाउ नो यू एंड दैट इज हाउ यू स्टैंड आउट as a row in that Excel sheet when they are coming for shortlist. ये मैंने करना शुरू किया. I took part in some 20 competitions, won 12 or 13 of them, and finally what happened is कि one day I was taking part in a competition that was organized by OYO, and the competition was around increasing the customer experience across all the OYO properties. I submitted the submission that I had done, जो भी मैंने अपनी रिसर्च एनालिसिस की थी. वहां पे सबमिशन के बाद मेरे टॉप 10 में भी कोई कॉल नहीं आई और दूसरी टीम थी जो जीत गई. आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि मैंने पूरे 3 महीने लगाए थे, एंड दिस वाज वन ऑफ द प्रोजेक्ट जहां पे मुझे लग रहा था कि यार काफी मेहनत की है, काफी अच्छे से काम किया है, चांसेस आर कि आई विल विन इट. मैंने फ्रस्ट्रेशन में नेट से रितेश अग्रवाल की मेल आईडी निकाली, उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन भेज दी कि सर दिस इज द प्रेजेंटेशन, आई वर्क हार्ड ऑन इट, प्लीज सी इफ दिस इज ऑफ सम इंपॉर्टेंस टू यू.
He really liked it. I got a reply back from him. He told me कि if you are willing to join, you can join us from next month itself. Again वही फंडा आ गया predictability का कि MBA का फर्स्ट ईयर किया है, इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, अब ड्रॉप कर गया और कल को वहां जॉब भी चली गई तो फिर होगा क्या. मैंने कहा कि यार ये तो नहीं कर सकते, इतना रिस्क लेने का भी एपेटाइट नहीं है, लेट्स होल्ड ऑफ, इस अपॉर्चुनिटी को जाने देते हैं, अपना जो कर रहे हैं उसी पे फोकस करते हैं. फोकस करना शुरू किया. अगेन टुक पार्ट इन सम कॉम्पिटिशंस and finally Google came to my campus. When Google came to the campus, all of the students in the campus applied. 550 का बैच साइज था, सबने अप्लाई किया. They shortlisted only 40. 40 के बाद पहला राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ, 20 एलिमिनेटेड, बचे 20. फिर बाकी 20 से लिया, 10 एलिमिनेटेड, बचे फाइनल 10. फाइनल 10 में जब इंटरव्यू हो रहा था तो लास्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड टू मी इन थर्ड राउंड by one of my good friends now who works with me at Google was कि why we should hire you and why not the candidate sitting outside this room. ऐसा क्या है जो तुम में डिफरेंट है, इनमें नहीं है. मैंने कहा यार बाकियों का नहीं पता, बट मेरी लाइफ को आप देखोगे ना वो दो फेजेस में, एक मेरा प्री एमबीए फेज है, एक मेरा पोस्ट एमबीए फेज है. प्री एमबीए अगर आप मेरी सीवी उठा के देखोगे आपको लगेगा यार ये तो बहुत ही जनरल कैंडिडेट है, कभी इसने 70-80 के ऊपर इसने कभी मारे नहीं, नॉर्मल टीसीएस इन्फोसिस टाइप की कंपनी से आ रहा है, 3 साल का वर्क एक्स है जो पूरे बैच का हुआ पड़ा है और इसकी स्किल्स भी सेम ही है जो किसी और में हमें मिल जाएगी. पर अगर आप एमबीए देखोगे, एमबीए इज द टाइम व्हेन आई हैव हसल्ड एक्सट्रीमली हार्ड. अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि मैंने सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशंस में पार्ट ले रखा है, कई उसमें से जीत रखे. मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकमेंडेशन लेटर है, राइट फ्रॉम दी से सीईओज ऑफ मेक माई ट्रिप और टू अदर स्टार्टअप्स. एट द सेम टाइम जो इंडस्ट्री नॉलेज मैंने गैदर की है, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि अगर आप मेरे को हेड ऑन कम्पीट करा दो इनमें से किसी से भी, मैं वहां पे उन्हें देन एंड देयर वहां पे डिफीट कर सकता हूं. आई नो कि थोड़ा सा वर्बोस हो गया था वहां पे, बट ही एक्सेप्टेड इट समहाउ बिकॉज द क्रेडेंशियल्स वर देयर इन द सीवी एंड देन आई गॉट माय जॉब एट गूगल. सो द सेकंड लेसन दैट आई वुड लाइक एवरीवन टू ड्रॉ हियर इज दैट कंसिस्टेंसी कंपाउंड्स. अगर आप अपने इनपुट्स पे फोकस करते जाओगे, आउटपुट की चिंता ना करते हुए, तो चांसेस आर हाई दैट यू विल सक्सीड. बिकॉज आपको आज लगेगा कुछ नहीं हो रहा, कल लगेगा कुछ नहीं हो रहा, पर धीरे धीरे करते जब आप 1 महीने बाद देखोगे आपको लगेगा यार ये तो बहुत कुछ कर लिया मैंने. I'll give you a simple example. So I and some of my friends right now are working on a startup idea where we want to leverage AI to make referrals and hiring simple. हमने पहले दिन इसको टेस्ट आउट किया कि यार चलो एक सिंपल सा एजेंट बनाते हैं, कोई भी उससे पूछ लेगा कि मेरे को रेफरल चाहिए, वो लोग खोज के बता देगा कि हाँ ये पर्टिकुलर बंदा आपको रेफर कर सकता है. पहले दिन की हमारी ये प्रोग्रेस थी. सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे होते होते अभी जब हम 30th डे ऑफ दी होल प्रोसेस में है, तो आज की डेट में जो हमने इनिशियली सोचा था उससे बहुत डिफरेंट हो चुका है. आज की डेट में जो हम डेवलप कर रहे हैं वो ये है कि आपकी हायरिंग भी करा देगा, रिक्रूटर को भी रीच आउट कर जाएगा, कंपनी को भी मेल दे देगा, सारी चीजें कर देगा. और इनिशियली जब स्टार्ट किया था ये सोचा ही नहीं था. इनिशियल यही थॉट प्रोसेस था कि बस इनपुट देते जाना है, अपना बेस्ट देते जाना है, फाइनली जो आउटपुट निकलेगा उसको एम्ब्रेस करना है. सो दैट इज द सेकंड लर्निंग दैट आई हैव फॉर ऑल ऑफ यू. Now coming to the third and the final part, which is life at Google. So I have been privileged enough that I work at an organization that has given me wings to fly. My first international trip to me being at Mountain View, meeting Larry Page, Sergey Brin, sitting with Sundar, everything has been possible because of this one organization. और exposure is phenomenal. जो भी मेरी learning हुई है वो यहीं पे हुई है. पर एक चीज है कि आई हैव बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन एरा जहां पे मैंने सचिन तेंदुलकर को भी वर्शिप किया है एंड सचिन बंसल को भी किया है. तो मेरे अंदर शुरू से ये था यार कुछ अपने आइडिया पे काम करना है, कुछ ऐसा करना है कि लर्निंग एंड टू एंड हो. ठीक है, यू आर ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यू आर लर्निंग एंड ग्रोइंग, बट एट द सेम टाइम आपको उसके अलावा भी कुछ सीखना है थ्रू एंड टू एंड एग्जीक्यूशन. दैट इज वेयर आई थॉट कि चलो कुछ स्टार्टअप ट्राई करते हैं. 2018 is the time when I came up with the first idea, let me build a D2C brand. D2C brand simple focused on fitness. आइडिया ये था कि आप एक टी शर्ट कंपनी बनाओ जिसमें आप 5 या 6 टी शर्ट्स का बंडल पैक भेजोगे. आप मैंने टाई अप कर रखा था विद जिम ट्रेनर्स एंड डाइटिशियंस कि आप पूरा पैक लेते हो, देन वी विल सिंप्लीफाई फिटनेस फॉर यू. यू विल गेट मर्चेंडाइजिंग, यू विल गेट डाइटिशियन, यू विल गेट अ फिटनेस ट्रेनर एंड योर हेल्थ इज सिंप्लीफाइड. इसमें मैंने ना कभी बैकग्राउंड रिसर्च की, ना ये समझा कि मार्केट में नीड है कि नहीं. आई वेंट ऑल आउट, थोड़ी सेविंग्स पोर इन की और लॉन्च कर दिया. Obviously product completely bombed, एक भी सेल नहीं हुई. एंड यू कैन सी ऑल ऑफ माई फर्स्ट कजिन, सेकंड कजिन, थर्ड कजिन, जिसके पास भी जाओगे वो टी शर्ट्स आज वो पहन के घूम रहे क्योंकि और किसी ने खरीदी नहीं. तो वो टी शर्ट्स जब
पूरा बिजनेस बॉम्ब कर गया, तो समझ में आया कि यार दिस इज समथिंग विच इज नॉट माई फोर्टे, चलो कुछ और ट्राई करते हैं। 1 साल का वेट आउट किया। 1 साल वेट आउट करने के बाद देन आई केम अप विद आइडिया कि यार जो Tier 3 के बच्चे हैं उनको एक्सेस नहीं है विद टॉप टेक टैलेंट, तो अगर इन्हें कल को एम करना है कि मे बी आई वांट टू गो इनटू लाइक्स ऑफ गूगल, मेटा, अमेजॉन, ये कैसे जाएंगे जब तक कोई समझाने वाला ही नहीं होगा। तो इसके लिए सिंप्लीफाई करते हैं। वी स्टार्टेड ऑफ विद अ पायलट प्रोजेक्ट, गॉट सम 300-400 स्टूडेंट्स। आई गॉट थ्रू ऑल ऑफ माई कनेक्शंस, गॉट सम 15-20 folks इन द रूम कि चलो वीकली कॉल्स करते हैं, इनको समझाते हैं और इन्हें प्रॉपरली हैंड टू हैंड मेंटरशिप करेंगे जिससे ये अपने करियर में ग्रो कर पाए। इट वॉज स्केलिंग वेल, वी ऑलमोस्ट मेंटर्ड समवेयर क्लोज टू 100-150 स्टूडेंट्स। बट दिक्कत ये थी कि मैं मोटिवेटेड हूँ और बाकी जो लोग आ रहे हैं उनके लिए बिगेस्ट मोटिवेशन वॉज कि इससे कुछ तो हमें पैसे मिलेंगे अगर अपनी टाइम एनर्जी दे रहे हैं। सो दैट इज वेयर मोनेटाइजेशन एंगल किक्ड इन। अब मोनेटाइजेशन कैसे होगा? ऑब्वियसली आई कांट पे फ्रॉम माई पॉकेट, आई हैव टू आस्क स्टूडेंट्स कि आप कुछ पे करोगे क्या। और वो जो प्राइस थी वो प्राइस ऐसी निकल के आई थी जो एक Tier 3 स्टूडेंट के लिए फिजिबल थी ही नहीं, क्योंकि अगर आप उनसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपको 10,000-12,000 मेंटरशिप के लिए पे करेंगे एंड दे देमसेल्व्स हैव टेकन अ होम लोन, सॉरी एजुकेशन लोन, तो बहुत डिफिकल्ट है उनके लिए इस तरह का पेमेंट करना। तो ये सेकंड प्रोडक्ट भी कंप्लीटली बॉम्ब हो गया। देन केम 2021। 2021 was the time when content creation was booming, and that was the time when my sister, she has cracked UPSC, so I made a video at Labasna, which is the academy where IAS IPS officers get trained, that with my sister at Labasna, that blew up like anything। और वो रात, एक ही रात में कुछ 3 लाख 4 लाख व्यूज आ गए और मेरा यूट्यूब चैनल पूरा पिक कर गया। अब दिक्कत ये हुई कि मैंने कंटेंट तो बहुत ही जेनरिक बनाया, और जेनरिक कंटेंट बनाया भी तो यूपीएससी वालों के लिए बनाया, जो अलग ही लेवल की पैशनेट ऑडियंस होती है। अब सिस्टर तो चली गई अपनी ट्रेनिंग करने, मेरे पास रोज कमेंट आने लगे, भैया और वीडियो और वीडियो। अब भैया वीडियो बनाया कैसे जब भैया ने खुद यूपीएससी प्रिपरेशन कर ही नहीं रखी। तो मेरे को समझ में आया कि यार ये ऑडियंस के लिए तो मैं कैटर नहीं कर सकता। मैं जितने भी एफर्ट डाल लूं, थोड़ा मैंने कोशिश की कि यार पढ़ूं समझूं क्या होता है एग्जामिनेशन, मेरे सर के ऊपर से निकल गया। और माय डैड इज अ पब्लिक सर्वेंट हिमसेल्फ, अगर करना हो तो मैं पहले ही कर लेता, मैंने किया ही नहीं। तो जब नहीं किया तो मैं कैसे कर सकता था वो चीज। फिर मेरे को समझ में आया यार ये तो अपना फोटे है नहीं। अपना फोटे क्या है? टॉकिंग अबाउट करियर, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड ऑल्सो इंटरव्यू प्रिपरेशन, because that is something that I have been doing day in day out. I've taken 100+ interviews at Google. I also have mentored and coached many students who have made it to top colleges. So जब वो फोटे तो उस पे फोकस करते हैं। Then I started talking about career and professional development. I started this channel called as That Salaried Guy, जहाँ पे फोकस ये था कि सैलरीड प्रोफेशनल्स की आप लाइफ को सिंप्लीफाई करोगे। एंड द चैनल स्टार्टेड इन 2021। इनिशियली 6 मंथ तक तो कोई ग्रोथ नहीं आए, बिकॉज आई फील इंस्टाग्राम ऑलवेज प्रेफर्स कंटेंट जो शेयर वर्दी हो, और करियर एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऐसा है कि लोग सेव करके रुक जाते हैं, कोई शेयर नहीं करता एक दूसरे के साथ, ये दिक्कत होती है। तो वहां पे थोड़ा टाइम लगा, बट नाउ द चैनल हैज ग्रोन कंसिस्टेंटली। एंड बेस्ट पार्ट अबाउट दिस जर्नी हैज बीन कि जितना मैं लोगों को सिखाता हूँ उससे ज्यादा मैं उनसे सीखता हूँ। नाउ बेस्ड ऑन माई इंटरेक्शन विद मेनी स्टूडेंट्स, विद वर्किंग प्रोफेशनल्स, मेरे को समझ में आया कि यार ये जो प्रॉब्लम है ना, ये काफी बड़ी है, लोगों के अंदर स्किल सेट ही नहीं है, ना ही लोग इसको डेवलप करना चाहते, तो इसे मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। और ये सारी लर्निंग तब हुई जब मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक नई चीज एक्सप्लोर किया। तो थर्ड लर्निंग फॉर यू ऑल इज कि योर ग्रोथ हैपेंस व्हेन यू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। एंड आई थिंक दिस इज वन थिंग दैट आईड लाइक एवरीवन टू एम्ब्रेस, कि अगर कभी भी लगे कि यार इक्विलिब्रियम आ रहा है ना, उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दो, क्योंकि इफ यू डिस्टर्ब इट देन यू विल सी कि यार काफी ज्यादा नई चीजें सीखने को मिल रही हैं, जो अगर मैं स्टेटस को मेंटेन करता या करती तो इट विल हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। फाइनली I'd like to leave you all with a quote, which is, don't settle, don't struggle, life is what flows in between. That was my time. Thank you.